So once again, A plus C 180 from cyclic quadrilateral. But do you see A plus B 180 है, तो A को मैं 180 माइनस बी बोल सकता हूँ. 180 माइनस बी प्लस बी प्लस सी भी 180 है, तो मैं सी को 180 माइनस बी बता सकता हूँ. एक 180 कैंसिल हो जाएगा. -2b प्लस 180 is 0. So 180 is equal to 2b. Angle B is equal to 90. एक एंगल 90 प्रूव हो गया, तो एक स्टेटमेंट लिखने का, पैरेललोग्राम विथ वन एंगल 90, therefore all angles 90. Therefore it is a rectangle. Sum over. तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मैंने स्ट्रेटेजी यूज की कि मैं उसको पैरेललोग्राम दिखाऊं और एक एंगल 90 बता दूं. तो दैट इज हाउ वी प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल. If the non-parallel sides of trapezium are equal, prove it is cyclic. Cyclic prove करना है. Non-parallel sides are equal. मतलब ये और ये साइड सेम है. सो ए बी सी डी में ए डी एंड बी सी आर सेम. So given quadrilateral ABCD, AD is equal to BC. To prove ABCD is cyclic. But what is the method of proving cyclic? The only method of proving that it is cyclic is A plus C को 180 बताना पड़ेगा और B plus D को 180. If we are able to show that total of opposite angles are 180, then we prove that it is cyclic. और फिलहाल वो एक ट्रपीजियम है. क्वाड्रिलेटरल ABCD is a trapezium or AD is equal to BC. This much is given. Let us see the proof. Trapezium ABCD. Therefore, angle A plus D is 180 and angle B plus C is 180. ये पहला रूल. This comes from chapter 6, lines and angles, parallel line and transversal, interior angles on same side of transversal topic है. तो A plus D हो गया 180 और B plus C 180. After writing this much, the property of trapezium, we have to take that trapezium out and draw two altitudes from A and B. A, B, C, D. Drop altitude AX and BY. AD, BC same. It's given. 90, 90 same. And the distance between the two parallel lines in trapezium is also same. Basically, I compared
these two triangles, and while comparing triangle ADX and triangle BYC, ऑल्टीट्यूड की वजह से x 90 y 90, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन सेम, तो AX BY सेम, and ADBC is given. So AD is equal to BC given. नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल ऐसा लिखा है. AX is equal to BY, ट्रपीजियम प्रॉपर्टी, एंड एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, क्योंकि वो एक ऑल्टीट्यूड है 90 डिग्री लाइन. देयरफॉर RHS थियरम के हिसाब से ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल. So what? So I can say angle D and angle C are same, CPCT. Therefore angle D is equal to angle C. अब जो स्टार्टिंग में ट्रपीजियम की प्रॉपर्टी लिखी थी A प्लस डी 180, वो वापस लिखो. Therefore angle A plus D is 180 ट्रपीजियम, बट D और C सेम है. देयरफॉर एंगल A प्लस C इज 180, और A प्लस C 180 मतलब ऑपोजिट एंगल्स सम इज 180, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में होता है. देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज साइक्लिक. दोनों प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ A प्लस C 180 कर दो, B प्लस D 180 अपने आप हो जाता. Therefore ABCD is cyclic. So you have to draw the circle वाला figure. Given that it's a trapezium and ADBC same, to prove it is cyclic मतलब A plus C 180 या B plus D 180 दिखा, ऐसे. This looks dangerous, but it is not if you pay attention to Judwa. Two circles intersect at 2 points B and C. Through B, two line segments ABD, PBQ are drawn to intersect the circle at ADP. Prove that ACP, QCD are same. पहले ACP है कहाँ देखो, it's this angle. And QCD is this angle. ये दो सेम प्रूव करना. It is so simple, you will not believe it. और उसको लिखने का एकदम आसान तरीका, लेट ये चौकड़ी दिख रही है, ये दो एंगल, इसको 1 और 2 बनाओ. लेट एंगल PBA 1, एंगल DBQ 2, 1 is equal to 2 vertically opposite angles. पहली चीज खत्म हो गई. अब दूसरी, कॉर्ड AB, देयरफॉर कॉर्ड AB नहीं, कॉर्ड AP. अगर कॉर्ड AP है तो एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCA. देखो PBA मतलब ये 1 और PCA वो दोनों PA क्रिएट कर रहा है, तो ये जुड़वा है. PBA इज इक्वल टू PCA, PBA तो 1 है, देयरफॉर PCA इज 1. तीसरा स्टेप, दूसरे सर्कल में ये जो 2 है ये उसका जुड़वा है, और कॉर्ड है DQ.
कॉड डी क्यू एंगल डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू, देयरफॉर एंगल डी सी क्यू इज 2, क्योंकि ये रहा ऊपर डी बी क्यू को 2 बनाया, तो ये 2, तो ये भी 2, ये 1, तो ये भी 1, और ये 1 इज इक्वल टू 2 बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर ये भी 1 इज इक्वल टू 2। तो 1 इज इक्वल टू 2, 1 की जगह पी सी है, 2 की जगह डी सी क्यू, हो गया प्रूफ। प्रूव दैट ए सी पी क्यू सी डी आर सेम, ये वही है। तो इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम द डायग्राम कि ये दोनों सेम क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट, 1 1 सेम क्योंकि जुड़वा, 2 2 सेम क्योंकि जुड़वा, तो ये भी दोनों सेम। If circles are drawn taking two sides of triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. Two sides of triangle को diameter बनाओ। Meaning, the red side will become the diameter of a red circle, and the blue side will become the diameter of a blue circle. Prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. ध्यान से देखो, ब्लू और रेड सर्कल कहाँ कट करते एक दूसरे को? इधर। वी हैव टू प्रूव दैट दिस पॉइंट P lies on the third side BC. तो ट्राइंगल ABC, AB को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, AC को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, तो वो दो सर्कल जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट BC के ऊपर है, वो प्रूव करना है। P belongs to BC. That's our target. Join AP. That's the first thing you will do, and you will write also. Join AP रेड सर्कल का डायमीटर AB है, तो APB में P 90 होगा। एंगल APB is equal to 90 because AB is diameter, therefore APB arc इज सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के अंदर का एंगल 90 होता है, ए बी डायमीटर है तो ए पी भी सेमी सर्कल है, इसलिए वो 90 बन गया। सिमिलरली ब्लू सर्कल में भी डायमीटर है, तो नीचे वाला एंगल 90 हो जाएगा। ए सी एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 90 बिकॉज ए सी इज द डायमीटर, therefore arc APC is semicircle arc। हमने क्या किया, सिर्फ एकदम इजीली इसको 90 दिखा दिया और ये भी 90। therefore एंगल APB प्लस एंगल APC इज 180, क्योंकि दोनों 90 90 है। Therefore, it's a linear pair. और अगर ये लीनियर पेयर है
therefore P belongs to BC. लीनियर पेयर के लिए बीच वाले पॉइंट को BC के ऊपर ही होना पड़ता है. सो इट्स रिलेटिवली इजी एंड स्मॉल, बट फिगर ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है. राउंडर से ही करना, वरना होगा ही नहीं. सो द थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन P belongs to BC. ABC ADC are two right angles with common hypotenuse AC. AC एक कॉमन हाइपो है जिसका पहला राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और दूसरा ADC. So ABC ADC are two right angle triangles with common hypotenuse AC. Prove that CAD CBD same. CAD CBD. अब CBD के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा. CAD CBD is same. Very easy. If AC is hypo, angle B is 90 and angle D is 90. Therefore, AC can be diameter and arc ABC and arc ADC can be drawn. क्या कह रहे हैं कि AC अगर हाइपो है मतलब AC के सामने 90 है और AC के सामने अगर 90 है तो AC के थ्रू सेमी सर्कल बना सकते हैं एंड AC कैन बिहेव लाइक डायमीटर. और ऐसा एक तरफ नहीं, दूसरी तरफ भी अगर हो रहा है कि कहीं पे 90 है तो यहां से भी सेमी सर्कल बन सकता है एंड अ फुल सर्कल इज क्रिएटेड. तो ABC ADC कैन बी ड्रॉन. देयरफॉर अब नया फिगर बना देने का. एक सर्कल, AC is the hypo but now AC is the diameter also. On one side there is ADC, on other side there is ABC and both are 90 क्योंकि सेमी सर्कल है तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है. तो सर्कल लाने की वजह से सम में थोड़ा बदलाव आया है. बी और डी ज्वाइन कर दो जैसे ऊपर भी किया है. अब देखो that I have to prove that this red angle and this red angle is same. वो तो है ही ना. CD is the common chord. Therefore, angle CAD is equal to angle CBD. जुड़वा. तो इट वॉज वेरी इजी. ऑल यू हैड टू राइट डाउन वॉज कि ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो सेमी सर्कल्स के अंदर है, मतलब सर्कल सीन में आ जाता है. एंड दिस इज लास्ट इज जुड़वा कॉन्सेप्ट. प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल.
साइक्लिक मतलब A प्लस C 180 एंड B प्लस D 180। अच्छा, दूसरी तरफ पैरेललोग्राम A प्लस B 180, B प्लस C 180, C प्लस D 180, D प्लस A 180। बाय द वे ये रिपीट सम है, पहले भी ऐसा आया हुआ है। तो साइक्लिक कहा तो A प्लस C 180 और पैरेललोग्राम कहा तो A प्लस B 180। अब इन दोनों को साथ में यूज करो। Call this as 1 and call this as 2। तो 1 से शुरू करो। A प्लस C इज 180 और A और C की वैल्यू B की भाषा में लिख दो। A मतलब 180 माइनस B और C मतलब 180 माइनस B, विच कम्स फ्रॉम 2। एक 180 कट, माइनस 2B is minus 180, so 2B is 180, B is 90। और फिर मैंने पहले भी यही डायलॉग लिखा था, वापस एक बार वही डायलॉग। इफ one angle of a parallelogram is 90, all angles are 90, hence proved it is a rectangle। Optional exercises we are not doing right now. Thank you.